Assalamu alaikum, sir. Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, Last time we introduced, or rather, discussed what is meant by a vector space. We talked about what is subspace. We considered examples of subspaces. Then we discussed some methods of building subspaces. The major lesson, yes, please. The major lesson when we studied vector spaces is that there are two sets. एक सेट वेक्टर्स का और एक सेट स्केलर्स. Then two operations. Vector addition and scalar multiplication. And third thing, axioms. V1 to V10. So whenever we have to study whether a given set of vectors is a vector space or not, we have to focus on the kind of vector addition and scalar multiplication is given. If it is usual, then axioms are satisfied. But when we introduce some unusual vector addition and scalar multiplication, some of the axioms may not satisfy. So these are major lessons for vector spaces. For subspaces, we considered that there is a vector space. There is a vector space, and there is a non-empty subset of this vector space. If the subset is also itself a vector space, then W is a subspace. And what is the criteria or the tricks that we need to test before we conclude or make a decision about a subset of a set of vectors is a subspace or not? First thing, क्या चीज थी? Zeros check करें. Zero vector must be in the subset. दूसरी चीज, Addition mate is closed. yes. So for every vectors u and v in the subset, this vector sum should also be in the subset. और तीसरी, k from field Scalar and multiple. yeah. So this is our trick or criteria that should be satisfied before we make a decision about whether a given subset of the set of vectors of a vector space is itself a vector space or not. That means subspace of this. Then we started talking about building subspaces. Give it up. सर ये जो हम फर्स्ट इसका जो कह रहे हैं कि zero is an element of W, so can we say that कि ये non-empty होना चाहिए? Every subspace has to be non-empty. Is it the same thing or not? मैंने जो examples discuss की थी, I'm going back to them. अभी मैं एक short review कर रहा हूँ. What we have discussed in this chapter. I'm going to consider subspaces again. So this is here what we were discussing last time and the time before that. सबसे पहले हमने R3 की कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि ये सब स्पेसेस हैं. Points on xy plane, points on xz plane, points on yz plane, any plane passing through origin
a line in R3 through region, ये सब subspaces हैं. Without proving, we stated that they are subspaces. और हम इसको prove कर सकते हैं. और R3 और has or any vector space has two trivial subspaces. एक तो वो खुद और दूसरा null vector. इन तमाम सब स्पेसेस में जो R3 की हमने अभी आपसे मेंशन किए, इन सब में एक पॉइंट कॉमन है, एंड दैट पॉइंट इज द ओरिजिन. इस वजह से हमने इस चीज़ को एक अपनी ट्रिक के तौर पे सेपरेटली नोट किया कि भाई ये जो ओरिजिन है इसका सबसेट में होना बहुत ज़रूरी है, वरना सब स्पेस नहीं बनेगा. और अक्सर बेहतर बिफोर वी गो टू एक्सप्लोर वेदर अ गिवन सबसेट इज सब स्पेस और नॉट, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सबसेट के अंदर जीरो है कि नहीं, तो बाकी काम फिर करने की जरूरत नहीं. So if I consider example, for example, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन R3 के जिसमें x, y, z सब पॉजिटिव हैं, इस पे जीरो वेक्टर तो है, लेकिन किसी वेक्टर जो इसके अंदर मौजूद है उसके नेगेटिव्स नहीं. 1, 2, 3 इस ऑक्टेंट में है, पॉजिटिव ऑक्टेंट जिसको हम कहते हैं, लेकिन -1, -2, -3 इस पॉजिटिव ऑक्टेंट में नहीं है. दैट इज वाई वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता. दैट इज वन अदर शॉर्टकट ऑफ वेरीफाइंग वेदर गिवन सबसेट इज अ सब स्पेस और नॉट, क्योंकि सब स्पेस को खुद वेक्टर स्पेस होना है. वेक्टर स्पेस तक होने के लिए जरूरी है कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जो है उसका नेगेटिव भी वेक्टर स्पेस. So we can, yes, you can consider two different vectors, see whether the given subset is closed under the addition and is scalar multiplication or not, or alternately इन दो ट्रिक्स के बजाय हम एक सिंगल ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो वेक्टर लें, दो स्केलर लें, लेने का ऑप्शन बनाएं और फिर चेक करें कि वो गिवन सबसेट में है या नहीं. अगर है तो फिर गिवन सबसेट जो है वो, हमने इसका प्रूफ आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ा है, हम इसके प्रूफ में की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डिटेल में हम जाना है. So not every non-empty subset subset W of a vector space is it. So we considered some example here. ये एक plane है which is not passing through a region. That means it does not contain zero vector. So this cannot be subspace. We consider a straight line in two space. R2 में की straight line है जो कि origin से नहीं गुजर रही. इसका मतलब है zero vector इस set में नहीं है, लिहाजा W cannot be a subspace of R square. Then we consider this example के only positive first quadrant in a plane, xy plane, इसमें भी जीरो वेक्टर नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर के अलावा दूसरी कवाहद भी जो है कि इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट तुम कंसीडर करो, इस पॉइंट के का नेगेटिव जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा इस सबसेट में, लिहाजा इट्स नॉट अ वेक्टर. वेक्टर स्पेसेस ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर सब स्पेसेस. मैं यहाँ जो चीज़ें हैं डिस्कस करने के बजाय मैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी और वहाँ मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस करके दिखाए हुए हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, तो विल सी देम. इसी तरह फंक्शनल स्पेसेस जो हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे जिसके निशानात ये मौजूद हैं यहाँ पे. तो बिल्डिंग अप सब स्पेसेस हमने शुरू कर दिया था, एंड हियर मैंने कहा था कि हम we have stepped into real core of linear algebra. If we have a vector space and there are number of subspaces of the same vector space, then in subspaces का जो intersection है वो भी subspace होगा. इसका हमने proof डिस्कस किया था. From given subspace, you can make new subspaces by intersection of two subspaces, and then you can build up subspaces using linear combination of few vectors. मैं जहाँ भी इंडेक्स R पे ख़त्म करता हूँ और अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो हमारा एक मतलब ये भी है कि ये फाइनाइट है.
दैट मीन्स मैं यहाँ जो वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस, ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स ने अपने स्केलर्स लिए, पहले स्केलर को पहले वेक्टर से दूसरे, so we make this sum of the scalar multiples of each of these finite number of vectors, and we call this scheme linear combination of the given vector. These scalars are called coefficients or weights of the vectors. Now, since I have said that these scalars that are multiplied to the vectors, they can be any elements of the field or R. So choice of K1, K2, K3 is arbitrary. So you can, out of 2 vectors or 3 vectors or 4 vectors, you can make infinitely many vectors that are linear combinations of the given finite number of vectors. तो अब ये set of all linear combinations जो बनेगा, उसके बारे में हमने ये थ्योरम डिस्कस की। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया किसी वेक्टर स्पेस का, set of all linear combination of the vectors in this is going to be a subspace of the larger space, जिससे वेक्टर हमने सेलेक्ट किए to make the set of vectors S. और साथ में हमने कहा कि ये जो वेक्टर स्पेस बनेगी linear combinations of vectors in S, this will be the smallest subspace in the sense कि मैं कोई और subspace ऐसी लूँ जिसमें इस सेट के सारे वेक्टर्स मौजूद हों, तो इन दैट केस ये जो W सेट बना है जिसको हमने कहा है कि वेक्टर स्पेस सबस्पेस होगा, और W प्राइम जो है will contain this subspace. Again, मैंने इसके ये दो स्टेप पहले के लिए कि एक वेक्टर W का जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है स्मॉल w1, स्मॉल w2, स्मॉल w एंड स्मॉल wr तक। दूसरा वेक्टर जो है उसके कोफिशिएंट्स के नाम चेंज कर दिए, अब u और v को ऐड किया तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उन्हीं वेक्टर्स का, यानी w1, w2, w3 अप टू wr का। चुनाचे ये w यानी सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन S है। इसी तरह स्केलर मल्टीपल जो है किसी भी वेक्टर का, दैट इज आल्सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स w1, w2. So the two basic things are verified. So W is a subspace of V. दूसरे पार्ट के प्रूफ को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूँ। We are introducing here important terminologies. Whenever I have, can you see this blank page that I was working with before? Yes, sir. Okay. मेरे पास मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल्स करके दिखाए थे, मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं। For example, I have vector 1 minus 2, 1, 2, 0, 3. ये मैंने लिए हैं R3 से। ये मेरा W1 है, मेरा W2 है। सेट बना और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बना K1 W1 plus K2 W2 such that K1 and K2 they are coming from set of real numbers जो कि फ्री है। अब ये जो सेट बन रहा है ये सब स्पेस है कि नहीं? अच्छा जनाब, तो हाउ टू वेरीफाई दैट इन दो वेक्टर्स से R3 की कोई सब स्पेस बन गई? तो इसका तरीका ये है कि हम A1 W1 प्लस A2 W2 इज इक्वल टू R3 है ना, तो X बाई C कर लो। अच्छा भाई, तो अब जरा ये वेक्टर्स इसके अंदर रख दें। A1 1 minus 2 1
plus A2 2 0 3 is equal to x by z. This makes a system of equation. Sorry, 1 minus 2, 1 plus 2. Coefficients of A1, coefficients of A2. So unknowns are A1 and A2, and they should result into points in R3. जो भी इससे स्पेस बनेगी वो हमने मालूम करना. So we go back to our old system of method of solving system equations. 1 2x minus 2 times first row added to second row minus 4 plus 0 and y minus 4x minus of R1 added to R3 then the next step for augmented matrix reduction 1 2x 0 1 4x minus y divided by 4 0 1 z minus x. Last step of reduction 1 2x 0 1 x minus y by 4 0 0 minus R2 added to R3. So what appears here? Minus of this, negative of this added to this. So minus x plus y upon 4 added to z minus x. अब मैं इस सारे प्रोसेस से ये कैसे नतीजा निकालूं कि इन वेक्टर्स से 1 minus 2 1 और 2 0 3 से एक सब स्पेस बन रही है. To deduce this result, first I have to look whether the system of equation resulted by making instead of all linear combination and equating it to x, y, z points in R3. इसको जब मैंने इक्लान फॉर्म में रिड्यूस किया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं? आप बताइए सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं? यस सर है. नो सर. अनकंडीशनल है कि कंडीशनल है? नो सर नहीं है. आपका पहला जवाब कॉन्फिडेंस रैंक कम था और अब जो है कंफ्यूजन से भरा हुआ है. नहीं है सर. कंडीशनल है बेटा. और मुझे बताओ कंडीशन क्या है भाई? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये दोनों जीरो है, ये तुम्हें जीरो नजर नहीं आ रहा, इसलिए कह रहा हूँ ना. हाँ राइट. अगर ये जीरो हो जाए तो इफ दिस एलिमेंट बिकम जीरो कंसिस्टेंट हो जाएगा एक्स ना. वाई जेड अगर तीनों जीरो हो, हाँ, होमोजेनियस हो. डोंट जंप टू कंक्लूजन. मुझे ये एलिमेंट जीरो चाहिए टू मेक दिस सिस्टम कंसिस्टेंट. So I write down 2x minus x मिलके हो गए 2x minus y by 4 minus z is equal to 0. So if this condition is true, the system is consistent. This system is conditionally consistent and condition ye hai. And I hope you can tell me that this is geometrically what? This equal.
मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस इक्वेशन ऑफ व्हाट? It's an equation of a plane. इक्वेशन ऑफ प्लेन. Plane is passing through origin or not? Yes, it is. So a plane passing through origin का जनरल रिजल्ट हमारे पास है कि वो सब स्पेस होता है. So होता है. जब मुझे 2 वेक्टर्स दिए गए थे उससे मैंने सिस्टम इक्वेशन बनाया और सिस्टम इक्वेशन को देखा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंडीशनली है कि अनकंडीशनली है. अगर अनकंडीशनली भी ये होता तब भी ये सेट ऑफ ऑल दीस लीनियर कॉम्बिनेशंस वुड हैव बीन सब स्पेस. और अगर कंडीशनली कंसिस्टेंट है तो कोई मसला नहीं. कंडीशनली कंसिस्टेंट अगर ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता तो मेरे लिए एक्चुअल सब स्पेस जो है, जो अब एक प्लेन के फॉर्म में सामने आ गई है, वो ज़रा प्रॉब्लम होती है. लेकिन कंडीशनली कंसिस्टेंट होने के लिए मेरे पास एक्चुअल वेक्टर स्पेस भी आ जाएगी, जनरेटेड बाय दिस अ प्लेन थ्रू origin is a subspace of R3. और कैसे जनरेट हुआ ये सबस्पेस? The set of all linear combinations of the two vectors जो हमने कंसीडर किए, 1 minus 2 1, 1 minus 2 1 plus beta times 2 0 3. where alpha beta are real numbers. So this आप अगर नोट करें तो ये पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हुई है. व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? x इज इक्वल टू x naught plus tv. ना x नॉट तो नहीं है ना यहाँ पे, R origin से है, right? tv t1 v1 plus t2 v2. बिल्कुल ये वही लिखी हुई है. ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी डिस्कसिंग, मैंने एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया. तो मैं किसी भी वेक्टर स्पेस से कुछ थोड़े से वेक्टर ले लूँ और उनके सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ, एंड दैट विल बी अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस जहाँ से कि मैंने वेक्टर्स उठाए. We have already shown that set of all, इसको हमने नया नाम दिया span of these vectors. So जब भी मैं कोई 2 वेक्टर्स सेलेक्ट करता हूँ, 3 वेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, 4 वेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, किसी भी वेक्टर स्पेस के उनका सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, दैट फॉर्म्स द सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस जहाँ से वेक्टर्स मैंने उठाए हैं. तो हम कहते हैं कि भाई this subspace is spanned by कौन से वेक्टर्स? 1 minus 2 1, 2 0 3. स्पैन भी कहते हैं, सब स्पेसेस जनरेटेड भी कहते हैं. ठीक है, हमें ये टर्मिनोलॉजी बहुत Excuse me, sir. बेटा ये ये हम जो मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं दैट इज अंडरस्टैंडेबल सर. आई एम श्योर इसका आपकी जो फेवरेट फील्ड है एस्ट्रोनॉमी, उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन है. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोई एक छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ में या कैसे मैटर करता है. बेटा इट इज टू अर्ली टू इंट्रोड्यूस थिंग्स. लेकिन आपको एक छोटी सी चीज बता दूं. अब आपने चुटकी ली है मुझे, तो मैं भी तो कुछ आप लोगों से कल मैंने वो शेयर किया था उसका इक्विनॉक्स के बारे में. पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा. लोग पूछते रहते हैं, मैं अक्सर मसरूफियात की वजह से जवाब नहीं दे पाता. कुछ लोगों ने कहा कि जी आप छोटी सी एक वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया करें जवाब. तो कल मुझे मौका मिला तो मैंने कर दिया. अब आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है कि 3 डायमेंशन में जब हम ये कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स.
किसी भी पॉइंट के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक डिस्टेंस कोऑर्डिनेट होता है जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है। पॉइंट P को आप एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज एक्स, दिस हियर इज वाई, दिस इज वाई। ओ ए गलत दिख रहा हूँ, ये भी गलत। अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ और ये जेड एक्सिस ले रहा हूँ, अब बनेगी बात कि ओ एक्स जो है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, ओ वाई जो है दैट इज ओ वाई कह लें या ओ बी कह लें, इज वाई कोऑर्डिनेट। और अगर इस पॉइंट को मैं कोई ए बी सी कह दूँ तो सी बी इज जेड कोऑर्डिनेट। ये एंगल कहलाता है थीटा और ये एंगल कहलाता है फाई। आई होप यू नो दैट। तो x इज इक्वल टू रो cos theta and what? Sin phi. Y is equal to rho sin theta sin phi. Z is equal to rho cos phi. ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन है कार्टेशियन की, सॉरी पोलर से कार्टेशियन में। और रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा इज ओल्ड हमारा प्लेन पोलर में जैसे tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होता था वैसे ही है। पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर। मैं जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करता हूँ, एस्ट्रोनॉमी में करूँ, फिजिक्स में करूँ, वट एवर वेर एवर आई कंसीडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने भी पिछले एक दो लेक्चर्स में यूनिट वेक्टर पे बड़ा आपको याद दिलाया। यहाँ पे लैपटॉप पे यार डिपेंड्स ऑन द मूवी। Now, can you think of how will you write down a unit vector in terms of rho theta phi? तो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे रो तो हटा देता हूँ। अच्छा, रो हटाने से क्या फायदा होगा? और उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल, क्या बनेगा? चलो अभी नहीं हटा रहा। रो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। रो स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने। Now what is common between these two? What is common between the first two terms? Sin square phi. बाकी क्या बचा? 1. Cos square plus sin square is 1. So sin square phi plus cos square phi. अब क्या बचा? सिर्फ रो स्क्वायर। सिर्फ रो स्क्वायर। इसका मतलब यूनिट वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स हैं cos थीटा sin phi sin theta sin phi into cos phi. Now, if we use this unit vector represented in polar coordinates, देखिए हमारे पास यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, ये चीज 1 है। इसलिए हम कह रहे हैं अगर मैं इस सब पे अंडर रूट लगा दूं तो अंडर रूट लगाने से इसके ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो 3 नंबर्स आए हैं मेरे पास या 3 एक्सप्रेशन आए हैं मेरे पास,
कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनके स्क्वायर रूट जो हैं वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जब भी तो ये 1 आ गया। तो मैं जब स्फेयर पे ट्रिग्नोमेट्री करता हूँ तो मैं यूनिट वेक्टर ये इस्तेमाल, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में सारा काम स्फेयर पे हो रहा है, so I use this unit vector. And very briefly मैं आपको एक एग्जांपल ये दे दूं कि स्फीयर पे जो ट्रायंगल बनती है, या थोड़ा सा आपको चौंका दूं। What's the sum of the angles of what is the sum of the 3 angles in a triangle? सर ये इसमें 270 हो जाएगा। नहीं, अभी जिसी ने 180 कहा था, जी 180 होगा ना सर? वो प्लेन ट्रायंगल में होता है, और आपके साथी कह रहे हैं इसमें 270 हो जाएगा। It will be anywhere between 180 to 540. Let me make you think about this. ये मैंने जमीन का गोला बना दिया, ये जमीन का इक्वेटर बना दिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक शिप यहाँ खड़ा हुआ है, अच्छा एक शिप यहाँ खड़ा हुआ है, एक शिप हम थियोरेटिकली कहते हैं नॉर्थ पोल पे है, 2 शिप्स हैं वो इक्वेटर पे है। Can you tell me what should be these 2 angles equal to? BP is a line made on the surface of Earth, shortest possible, joining the place B and the North Pole. ये लाइन जो है इस सर्किल पे क्या एंगल बनाएगी? 90 बनाएगी। 90. Same will be the case here. तो भाई दो ही एंगल्स का सम जो है 180 हो चुका। ये जो एंगल है, अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े हो तो ये ए प्लेस और बी प्लेस के दरमियान लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अगर ए को बिल्कुल मैं कोने में ले जाऊं और बी को बिल्कुल कोने में ले जाऊं तो असल में ट्रायंगल खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं बनाया, इसलिए मैंने ए को यहाँ कोने पे नहीं बनाया, बी को कोने पे नहीं बनाया, क्योंकि 3 हाफ सर्किल हो जाता, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल नहीं है। लेकिन हाफ सर्किल जो है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 180, so this angle has to be less than 180, slightly less than 180 degrees. Yeah. So 90 and 90, 180, 180 less than. So अब यहाँ 3 एंगल्स हैं, उनका सम 360 डिग्री है। इसी तरह मैं एग्जांपल क्रिएट करके आपको बता सकता हूँ कि अर्थ की सरफेस पर या आसमान पे 3 पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल्स हैं, जिनको हम स्फेरिकल एंगल्स कहते हैं, इनका सम जो है 180 डिग्री से लेके 540 तक होता है। क्योंकि जैसे ये लेस देन 180 डिग्री एंगल है, मैं ये जो इनको मैंने मिलाया वो इक्वेटोरियल सर्किल से मिलाया है। अगर मैं इस लाइन को नीचे ले जाऊं या किसी और डायरेक्शन में ले जाऊं, आई कैन एक्सटेंड दिस एंगल टू बी मोर देन 90 and more than 90 up to 180, and then the number will reach close to 540. Okay. ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है लेस देन 180, ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है लेस देन 180, so at most it will be 540. अब जब मैं तुमने पूछा ना कि कोई ये, अब तुम्हें अभी इन एग्जाम्पल से भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि R2 में तो एक एंगल से काम चल जाता था, R3 एंड अबव मैं एक एंगल से काम नहीं चला सकता, 2 एंगल से काम भी नहीं चला सकता, मुझे 3 एंगल चाहिए। Right. So a whole building of hundreds of stories is erected upon this knowledge that we are gaining in linear algebra. और आपने मेरे शौक के हवाले से एक सवाल पूछा
तो मैं, ये मेरा पहला लेसन होता है जब मैं फॉर्मली मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी अंडरग्रेड, हायर अंडरग्रेड लेवल पे शुरू करता हूँ। 3 डायमेंशन से उसको लिंक करके और फिर उनको ये बताना। वन लास्ट थिंग, छेड़ा है, मुझे मजा आ रहा है। डू यू नो सम कोसाइन फॉर्मूला इन प्लेन ट्रायंगल ए बी सी? इस एंगल का कोसाइन कैसे लिखते हैं? Sir, a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a. AB square plus AC square and then Minus minus 2ab AB ab then ac minus 2. and cos c. so that is not in fact this is something else. This is BC whole This will square bc, yeah, bc whole and square. cos of opposite angle comes here. So now cos of A can be written in terms of what? bc square minus ab square BC minus square ac minus AB square minus ac square square upon 2AB ab ac. and AC, right? मगर जब मैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कर रहा होता हूँ, मैं नोटेशन इस्तेमाल करता हूँ ऐसी ही, जैसे यहाँ पर इसको स्मॉल सी कहते थे, इसको स्मॉल ए कहते थे, इसको स्मॉल बी कहते थे। तो कॉस ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ दैट बी सी स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b, bc. है ना? यहाँ भी लेंथ ऑफ साइड जो है उनके लिए नोटेशन वैसी ही है, मगर यहाँ साइड जो है वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कर्व्स, कर्व्स हैं। और ये कर्व्स जो हैं ये सर्कुलर आर्क हैं बेसिकली। तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके जब हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डेवलप करते हैं तो वी आर सरप्राइज टू गेट रिजल्ट्स ऑफ दिस टाइप। Cos of angle A is equal to, instead of that, let me write down. This is unknown side. So cos of small a is equal to cos of small b into cos of small c plus sine of small a into sine of small b into cos of capital A, which is the opposite angle. It is the side. अच्छा, सर्कुलर सेक्टर्स हैं क्योंकि ये, लिहाजा लेंथ जो है दैट इज एन एंगल। फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है एस इज इक्वल टू आर थीटा से लिख सकता हूँ ना मैं, बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा। फिर थीटा इज 90 डिग्री π/2, और अगर मैं आर को स्टैंडर्डाइज करके आर इज इक्वल टू 1 कर दूं तो आर लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एंगल विल बी सेम। तो सर्किल स्फीयर पे जो सर्कुलर आर्क्स हैं विच आर शॉर्टेस्ट पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, they are also measured in the terms of angles that their end points make at the center of the sphere. तो मेरे पास ये फंडामेंटल फार्मूला आता है एस्ट्रोनॉमी में, जिससे मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑन ए स्फीयर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कराची से मक्का तक कितना डिस्टेंस है, कराची से लंदन तक कितना डिस्टेंस है, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इस्तेमाल करके मैं इस फार्मूले से निकालता हूँ। और इसी तरह का एक फार्मूला होता है जिससे डायरेक्शन पता चलती है, डायरेक्शन ऑफ वन प्लेस फ्रॉम अनदर प्लेस। तो अब ये सारी चीज़ जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है जहाँ पे यूनिट वेक्टर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ दिस। मेरा ख्याल है तुमने मुझे जज्बाती कर दिया और मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा साहब, यार देखो ना, बात सुनो, अपने इलाके का कोई बंदा मिल जाता तो वैसे ही आदमी सब कुछ भूल भाल के बातें शुरू कर देता गाँव की अपनी अपने गाँव का जिक्र था, इसलिए हम इधर से उधर बैठ गए।
कमिंग बैक कि मैं स्पैन किसको कहता हूँ, मैंने किसी वेक्टर स्पेस से चंद वेक्टर लिए, उनके सेट ऑफ उनसे जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऑफ कोर्स इन्फिनिटली मैनी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं दैट इज स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स रिटर्न। अगर एस वेक्टर्स का नाम एस है, सेट ऑफ वेक्टर्स का नाम एस है, तो स्पैन ऑफ एस डिफाइंड डिनोटेड बाय एस पी ए एन ब्रैकेट एस, स्पैन ऑफ एस। और इसी को हम कहते हैं कि ये जो सब स्पेस बन रही है, दिस इज जनरेटेड बाय द सेट एस। वी हैव ऑलरेडी शोन दैट दिस इज सब स्पेस and this is generated by vectors in the set S. R square is generated by the standard unit vectors I and J. As each vector in R square U can be written as a linear combination of I and J, where X and Y are coefficients of the vectors जिनसे कि मैं linear combination बना रहा हूँ। इसी तरह in R3 vectors are being generated by the standard unit vectors I, J, K. Every vector in R3 can be written as a linear combination of I, J, K. So we say that R3 is a span of these three vectors, or R3 is generated by these three vectors. Set of polynomials are degree at most 2. This is generated by three vectors, three polynomials. एक polynomial 1 है, एक polynomial x है, एक polynomial x square है। ये जो polynomial है जिसको मैंने कहा सिर्फ x, सिर्फ 1, ये polynomial है कि नहीं? Is it a polynomial or not? सर कह सकते हैं अगर उसमें सिर्फ If it is कांस्टेंट है और not, एक्स के। if it is not, तो मसला खत्म हो गया। मसला शुरू होता है जब हम कहते हैं कि हाँ है। तो फिर सवाल है किस डिग्री का? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का। So I should write it P naught. Now, is it a polynomial? Only x? Yes, sir. Of degree? Only one. And P2x is equal to x square. Degree 2, sir. So 1x और x square के लीनियर कॉम्बिनेशन से वो सारे पोलिनोमियल्स बन रहे हैं जिनकी डिग्री 2 या उससे कम। So the span of these three functions is a set of all polynomials of degree 2 or less. So this vector space is generated by 1x and x square. इसके बाद हम ये एग्जांपल भी डिस्कस कर ली थी कि भाई ये दो वेक्टर्स हैं, ये क्या 927 के का लीनियर कॉम्बिनेशन है और 4 - 1 8 कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ये एग्जांपल हमने डिस्कस भी कर लिया था। सिस्टम इक्वेशन कैसे बनते हैं। I hope I don't need to revise it because I'm going to consider more examples. For example, this was discussed. This was also discussed. The solution set of W of a homogeneous linear system is in n unknown is a subspace of Rn. अभी तक तो मैं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ मैं last time पहुँच गया था, and that was I think somewhere here. So we have learned few important things, and we now put that knowledge to work in exercise 4.2. I will share this file. इसमें कुछ सवाल मैंने किए हुए हैं 4.2 पे, आप खुद गौरिया लीजिएगा। इसमें से मैंने कुछ डिस्कस कर लिए थे। 4.2 मैंने मैट्रिसेस की जो स्पेसिस थी उनको उस वक्त मैंने मौखर कर दिया था कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा। Now here in question number 2 we are given this set which contains matrices of what type? All square matrices of order n by n. That makes this collection. Let me close it. That M
सब n नाम है इस वेक्टर स्पेस का, और मैं इसके सब स्पेसेस देखना चाहता हूँ। इसका मतलब मैंने ये सवाल तो छोड़ ही दिया कि ये खुद वेक्टर स्पेस है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वेक्टर एडिशन, और यहाँ पे वेक्टर एडिशन क्या है, मैट्रिक्स एडिशन, यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो usual scalar multiplication and usual vector addition, that is matrix addition. Matrix addition usual क्या है कि A और B अगर दो मैट्रिसेस हैं तो corresponding elements जो हैं वो ऐड होंगे। If you understand this, and of course जब मैं MNN लिखता हूँ तो it's a long list of axioms A1 to A10, मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। आई एम सेइंग दैट दिस इज वेक्टर स्पेस, और उसके कुछ सबसेट्स जो हैं उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ। सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, AII जहाँ लिख के दिखा दिया ना, तो AIJ is equal to 0 for each I not equal to 0। ऑफ डायगोनल सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो। तो अगर इस शक्ल का एक मैट्रिक्स ये लूँ और एक मैट्रिक्स ये लूँ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, राइट। सो अंडर वेक्टर एडिशन विच इज मैट्रिक्स एडिशन, the set of all diagonal matrices is closed। और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख ली। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी डायगोनल एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, तो के ने डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना। इसका मतलब है S is closed under scalar multiplication। तो S is a subspace of n by n स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ जीरो वेक्टर का अब जिक्र हम नहीं करेंगे, शुरू में वो हमने आपको वाजे करने के लिए बता दिया कि जीरो वेक्टर ऑफ कोर्स जब k टाइम्स w इज इन द सेट S, तो k जीरो भी हो सकता है, इन विच केस ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, तो जीरो मैट्रिक्स भी सेट है। तो द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस व्हिच इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल n by n मैट्रिसेस इज अ सबस्पेस। व्हाट इज द सेकंड वन? वो तमाम स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n जिनके डिटरमिनेंट जीरो है भाई। किधर गया बी बाद में किया मैंने, ओके बी मैंने किया ही नहीं है। 4.1 यहाँ पे किया हुआ होगा। नहीं भाई यहाँ भी नहीं किया हुआ। 4.1 क्यों देख रहा हूँ? I should look at 4.2। Yes, here। कहाँ गया यार 4.2 का? किया नहीं था, चलो कोई बात। यहाँ आ जाओ एंड लेट अस लुक एट बी। अब सब सेट जो है वो क्या है? सबसेट जो है वो है matrices of order n by n such that वो तमाम matrices of n by n order जिनके डिटरमिनेंट जीरो हैं। So let A be an element of W, इसका मतलब है determinant of A is 0। Let B be also an element of W, element of W होने की वजह से the determinant of B will should also be 0। So what about
A plus W, A plus B. Does it belongs to W? So look at the determinant of A plus B. Determinant की properties से हमें याद होना चाहिए कि determinant of A plus B is same as determinant of A plus determinant of B. चूंकि determinant of A 0 है और determinant of B भी 0 है, that means determinant of A plus B is equal to 0. This means closure property आ गई under vector addition. So any two matrices having 0 determinant, their sum is also a matrix whose determinant is 0. So that is an element of W. So scalar multiple is that belong to W? Okay, what is the determinant of K into A? By properties of determinant, we know that जब किसी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो every element of the matrix is multiplied with the scalar K. Let me just make you remember, अगर मैं A, B, C, D, so this will become what? KA, KB, KC, KD. Now what should be the determinant of this? The determinant of this should be KA minus KD, sorry, KA into KD minus KB into KC. What is taken common? K square is taken common. AD minus BC. And what is this AD minus BC? Determinant. Determinant of what? Of A. A, B, C, D. ठीक है? Yeah. तो जब 2/2 है तो K square बाहर आया. N/N है तो क्या बाहर आएगा? N. K power N. K power N, determinant of A, and since the determinant of A is 0, 0. so K power N उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, so scalar multiple is also an element of W. So set of all determinants with determinant 0 are making a subspace of all n square n matrices vector space. इसी तरह ट्रेस का मैंने यहाँ पे किया हुआ है शायद यस वो तमाम matrices in the set of all n by n matrices जिनके ट्रेस जो हैं वो 0 हैं, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसको देख लेना. P3 का एग्जाम्पल है जिसमें is a space of all polynomials of degree 3 or less, और इसमें हम सबसेट डिफाइन कर रहे हैं. क्या इंटरेस्टिंग सबसेट. जब मैं पोलिनोमियल्स लिखता हूँ तो A, B, C, D आर एनी रियल नंबर्स, मगर यहाँ मैंने क्या कहा है कि इस सेट के which is a set of all possible polynomials of degree 3 or less, इनके कोफिशिएंट्स पर एक शर्त लगा रहा हूँ, और वो शर्त क्या लगाई है कि कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर हो. Now this set is not same as this set. This set is not same as this set. यहाँ पे 1x, x² x³ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं. अब देखना ये है कि s जो कि इसका सबसेट जरूर है, क्योंकि a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब इंटीजर भी हो सकते हैं, तो ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं सिर्फ, वो इसका सबसेट है. ओके. W जो है वो एक वेक्टर है, इसमें इसका स्केलर मल्टीपल लेंगे तो हर एलिमेंट. नाउ
tell me, what about these four numbers? Are these integers? A0, A1, A2, A3 तो integers हैं, मगर k is any real number. So k times A0, k times A1, k times A2, k times A3 would be integers or not? No, sir. No, sir, In not general, no, necessarily. because k is any real number, fraction, rational, irrational, blah blah, सब कुछ हो सकता है. So, but kai, 0, 1, 2, 3, are not necessarily integers, as k is a real number. So, as is not. Sorry. तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिनमें कोफिशिएंट सिर्फ इंटीजर्स हैं, वो इस लार्जर सेट ऑफ पोलिनोमियल्स का सबस्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गई. अब देखिए साहब, मेरे पास 3 पोलिनोमियल्स हैं और पूछा यह गया है कि ये चौथा पोलिनोमियल जो है वो इन 3 पोलिनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं. अब ऐसा ही है कि मैंने P2 यानी सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 2 के अंदर से 3 वेक्टर्स ले लिए. अब ये 3 वेक्टर्स क्या क्या जनरेट कर रहे हैं, उनमें से क्या ये वाला पोलिनोमियल है? सम A टाइम्स फर्स्ट polynomial, sum B times second polynomial, sum C times third polynomial is equal to this required polynomial or not. तो मैंने यहाँ थोड़ी सी जंप लगाई है, ये मेंटल अलजेब्रा कर लिया है. 2A प्लस B प्लस 3C कॉन्स्टेंट्स हैं. 1A माइनस B प्लस 2C x के कोफिशिएंट्स हैं, एंड इसी तरह x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 6. एंड देन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आई come to find this system of equation. Constant is equal to constant, coefficient of x is equal to coefficient of x, coefficient of x, and I again land into a problem of solving system of linear equation. अगर ये system of linear equation consistent आ गया तो linear combination है, consistent नहीं आया तो linear combination नहीं. So I reduce it and I got what kind of consistent system? पहला डायगोनल 1, दूसरा डायगोनल भी 1, तीसरा डायगोनल भी 1. मैंने 1 किया नहीं है, लेकिन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स या तीनों लीडिंग एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल प्लेसेस पे हैं. यूनिक सॉल्यूशन के साथ है. एंड व्हाट इज दैट यूनिक सॉल्यूशन? वो मैंने निकाल दिया. इसका मतलब ये है कि जो गिवन 3 पॉलिनोमियल्स थे, ए की जो वैल्यू आई उसको इससे मल्टीप्लाई करें, बी की वैल्यू आई इससे मल्टीप्लाई करें, सी की वैल्यू इससे आई, तो ये रिजल्ट आ जाएगा. ना लीनियर कॉम्बिनेशन हम यहाँ कहते हैं इज यूनिकली डिटरमाइंड. Not every time I will have a linear combination uniquely determined. But in this case it is. इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने अभी सॉल्व किया सिस्टम, उसका जो सोल्यूशन था a is equal to 4, b is equal to -5, c is equal to 1, इन 3 नंबर्स के अलावा और किसी 3 नंबर से ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. So this vector this polynomial cannot be formed using any other values of a, b, and c. In that sense, it is a unique linear combination. So determine whether these 3 vectors span R3 or not. यानी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था R3 के जो vectors हैं, what vector? Any x, y, z belonging to R3 can be written as a linear combination xi plus yj plus zk. Or you know what is xi, what is I, what is j, and what is k. लेकिन यहाँ क्या सवाल किया जा रहा है? R3 का हर
एलिमेंट जो है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे के। यहाँ जो सवाल किया जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर दीज थ्री वेक्टर स्पेन R3 और नॉट, इसका मतलब क्या R3 का हर वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स लिखा जा सकता है? सो चलो भाई ट्राई करते हैं। एंड वी हैव द मेथोडोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल। इस वेक्टर को एक इसके से मल्टीप्लाई किया, इसको दूसरे से, इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करके आर्बिट्री वेक्टर एक्स वाई जी के बराबर रख दिया, which results into a system of linear equations with this column of A values, column of P values, column of C values, and we solve it. Solve करने के बाद हम कहाँ पहुँचे? दो डायगोनल, यानी A और B जो है वो बेसिक वेरिएबल्स है, C जो है वो फ्री वेरिएबल्स है। क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है? सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहली बात, R3 का हर एलिमेंट इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है गिवन वेक्टर्स डू नॉट स्पैन R3। तो भाई गिवन वेक्टर्स क्या स्पैन कर रहे हैं? इस एलिमेंट को 0 के बराबर रख दो तो वो एक प्लेन स्पैन कर रहे हैं, पूरा R3 स्पैन नहीं कर रहे। तो प्लेन स्पैन करने का मतलब क्या है? ये लास्ट टाइम भी कुछ हमने थोड़ी ज्योमेट्री डिस्कस की थी कि R3 जो है वो बेसिकली x axis, y axis, z axis, and we have a plane something like this, may not be passing through origin or may be passing through origin, लेकिन इस पे अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं तो these two vectors span only points on this red plane, not the whole R3. That's the message of this exam. So they span only this, and जाहिर जब span कर रहे हैं और वो सब स्पेस होगा तो ये origin से गुजरेगा. So in this example, this is not what we wanted. जो कुछ भी हमें चाहिए था वो दकीकत एक ऐसा सब होगा जिसमें ओरिजिन से गुजर रहा है। तो दो वेक्टर्स on this green plane and their linear combination will make a plane that passes through origin. There is another approach from vectors this. Make a matrix, placing vectors on column and find its determinant. And we find that इस रिडक्शन से भी पता चल रहा है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वेक्टर्स डू नॉट स्पैन R3. But this second approach will be used only when matrix formed from the given vectors is a square matrix. जिस केस में अगर डिटरमिनेंट 0 है तो वेक्टर्स डोंट स्पैन Rn, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब ये है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। इन दैट केस द गिवन वेक्टर इज स्पैन Rn। ये जनरलाइज करके लिए बता रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स करंट एग्जांपल जो थी वो R3। तो वी विल कम अक्रॉस एग्जांपल्स वेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर नहीं होगा। जब स्क्वायर नहीं होगा तो मुझे फंडामेंटल मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंडामेंटल मेथड इज अप्रोच 1। इन्हें कमीशन बनाओ और आर्बिट्री पॉइंट ऑफ द स्पेस के बराबर रख दो, सॉल्व करो और देखो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये देखो कि पूरा R3 से जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा। पूरा R3 जनरेट होने का मतलब है कि हर डायगोनल एलिमेंट सर्वाइव करे। This is question number 11D of the exercise. Determine whether the following vectors span R3. कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 वेक्टर्स। इन्हें कॉम्बिनेशन A1 AB1 plus BV2 plus CB3 plus BV4 is equal to any point in R3. सिस्टम इक्वेशन बन गया कॉलम ऑफ A, कॉलम ऑफ B, कॉलम ऑफ C, कॉलम ऑफ P। सॉल्व करना शुरू किया, सॉल्व करते 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 कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंच गए।
यहाँ पांच के हमें अंदाजा हुआ कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज सेम, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, so given vector spans R3, every diagonal is non-zero. एक कमेंट यहाँ कर दूं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, R3 में अगर 4, 5, 6 वेक्टर्स लो तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल स्पैन R3. R3 में 3 वेक्टर्स लूं, अभी देख चुका हूं मैं, दे कैन स्पैन और दे मे नॉट. लेकिन R3 में 2 वेक्टर्स लूं तो 2 वेक्टर से तो प्लेन बनेगा, पूरा R3 नहीं बनेगा. R3 में 1 वेक्टर लूं तो एक लाइन बनेगी, पूरा R3 नहीं बनेगा. Special note, out of the 4 vectors, one is a linear combination of rest of the 3. मैंने कहा 4 वेक्टर दिए हैं और ये वो केस है कि वो R3 को स्पैन कर रहा है. हकीकत R3 को स्पैन करने के लिए 3 वेक्टर्स काफी होते हैं. We will learn a theorem later on and more details about what we are studying. फिलहाल हम आपको सिर्फ एक गेम की तरह एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो चौथा वेक्टर था वो फालतू था, और जो फालतू है वो R3 के अंदर है. जब वो R3 में है तो जो पहले 3 काम के वेक्टर से ये चौथा वेक्टर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी V1, V2, V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, V4 के बराबर रखो एंड वेरीफाई इट योरसेल्फ. यूनिकली डिटरमाइन आना चाहिए. कर लोगे? Yes, sir, inshallah. Yes, sir. Inshallah. That's good. Suppose V1, V2, V3 are given vectors. Which of the following vectors are in span of these 3 vectors? अब नोट करो, ये जो V3, ये जो है ये अब प्रॉब्लम R4 की है. 4 कंपोनेंट है ना. Which of the following vector is in a span of these 3 vectors? इसका मतलब क्या होगा? Is it equal to AV1 plus BV2 plus CV3 and find a unique solution that gives you the value of AB and C in every such case? तो मैंने पहले वाले केस को किया है. हाँ, A times first vector, B times second vector, C times third vector is equal to this given vector. अब मेथड वही है, सिस्टम को सॉल्व करो. रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए. बी इनकंसिस्टेंट आ गया. दैट मीन्स दिस वेक्टर इज नॉट इन द स्पैन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. दिस मीन्स दिस वेक्टर इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर. दिस मीन्स दिस वेक्टर इज नॉट जनरेटेड बाय दिस. अगर मैं इसका नाम लिख दूं, रख दूं एक्स, तो मैंने क्या 3 जुमले कहे? इज नॉट इन स्पैन ऑफ V1, V2, V3. और क्या कहा? X इज नॉट जनरेटेड बाय. ये जो टर्म है ये सिनोनिमस है, राइट? एक और भी मैंने कुछ कहा था. Of course, is not a linear combination of these 3 vectors. इन तीनों जुमलों का मतलब एक ही है. पार्ट सी था 1, 1, 1. इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? तो हमने अब 1, 1, 1 राइट साइड पे रखा, सॉल्व किया, इनकंसिस्टेंट आ गया, तो नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन. फिर पार्ट डी उठाया, उसमें कोई और वेक्टर था, -4, 6, -13, 4. देखा
सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया इस केस में, एंड ओके दिस वेक्टर दिस इज ओनली वेक्टर, पर 0 0 को मैंने चेक नहीं किया, डी को चेक किया, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो दिस वेक्टर is in the linear combination, is the linear combination of this. This vector is part of the span of this. This vector is generated by these three vectors. सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने ये कहा, आपने ये कहा कि R3 में हम बात कर रहे हैं, तो only 3 vectors are sufficient to span over R3. जी. तो अब हम जब R4 में बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही बात ट्रू होगी? हाँ बिल्कुल. असल में आई एम बिल्डिंग अप थिंग्स कि R3 3 डायमेंशनल है, R4 4 डायमेंशनल है, जिसको आप अभी टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, लेकिन क्यों है वो 4 डायमेंशन? आपने बात छेड़ ही दी है, तो चलिए कुछ गप्पे मार लेते, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जितना कुछ हम सीख चुके हैं उससे अब जो मैं गप्पे मारूंगा वो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल होंगे, हवाओं में नहीं आ रहे. देखिए जी, पूरा R3 जनरेट करने के लिए 2 वेक्टर से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये स्टडी कर चुके हैं कि 2 वेक्टर्स जो हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं दे मेक अ प्लेन. So R3 cannot be generated by 2 vectors. R3 cannot be generated by 1 vector, क्योंकि 1 vector जो है वो उसको भी हम देख चुके हैं कि लाइन बनाए. तो R3 को 3 वेक्टर, तो कौन से 3 वेक्टर? 1 0 0. अबे रुक जाओ, वो तो है ही ना, वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो स्टैंडर्ड है, हम तो नॉन स्टैंडर्ड ही बात कर रहे हैं. मैं फर्स्ट करो R3 में हूँ, लेट मी कन्वर्ट इट फ्लैग. मैं R3 में काम कर रहा हूँ और आपको मैंने एक वेक्टर दे दिया ओरिजिन से निकलता हुआ. इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या बनेंगे? इसी लाइन पर पॉइंट बनेंगे, राइट? तो एक वेक्टर काफी नहीं है. अगर मैं 2 वेक्टर ले लूं तो मैंने कहा कि एक ग्रिड बना दूं, वेक्टर्स पैरेलल टू यू, वेक्टर्स पैरेलल टू वी ऑन आइदर साइड. तो अब ये जो ग्रिड बनती चली जा रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक प्लेन बना रही है, 2 वेक्टर से प्लेन बनेगा. ठीक, क्या कभी भी 2 वेक्टर टू तो प्लेन बनेगा? नहीं सर. सर अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा तब बनेगा. रुक जाओ, मैं ये पोजीशन वेक्टर्स ले रहा हूँ, 1 2 3, 1 -2 3 एंड -2 4 -6. ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है लिहाजा ओरिजिन से गुजर रहे हैं. लेट अस सी के प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा. देखने के 2 तरीके हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल है और एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. A times 1 -2 3 plus B times -2 4 -6. Let me keep it equal to x y z. 1 -2 4 -2 4 -6 x y z. ये मैंने सिस्टम बना दिया. कॉलम ऑफ 1 -2 3 होगा सर. oh sorry, फर्स्ट कॉलम में से. okay, तो रिडक्शन शुरू की. 1 -2 x 2 into R1 plus R2 -3 R1 plus R3 0. what happened?
What do I get? पहली बात तो ये है कि ये V1 और V2 V2 span is only a subset of R3. Is not generating complete R3. ठीक है? Is it generating a plane? No sir. ये प्लेन भी नहीं बना रहा, क्योंकि प्लेन बनाने के लिए मेरे पास ये जो है ये वेक्टर इक्वेशन बन जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम की कंसिस्टेंसी रिक्वायर है कुछ भी बनाने के लिए, एंड सिस्टम की कंसिस्टेंसी जो है वो कंडीशनल है। क्या कंडीशन है? This will be consistent when y minus 2x is equal to 0 and 2x 0 हो and z 3x ये 0 हो। ठीक है जी, इसका मतलब है y is equal to 2x हो और z is equal to 3x हो। अगर आप y और z की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दें। Now these two equations represent what? line हाँ, let me 3 डायमेंशन में लाइन जो है वो डिसीविंग होती है। लेट मी मेक इट ऑन द 3 ये वेक्टर्स। वो एक्सरसाइज तो मैंने सिरे से दी, को टाइम ही नहीं दिया जिसमें पॉइंट्स को 3 डायमेंशन में प्लॉट करने की बात हुई। पहला वेक्टर है, अगर मैं इसको x ले लूँ, इसको y ले लूँ, इसको z ले लूँ और पहले वेक्टर के लिए कलर लेट्स यूज कर लो, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 3। ये हुआ पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है? दूसरे वेक्टर के लिए लेट मी चूज ग्रीन कलर। ये बनाने के लिए हमने क्या किया था? ओह, मैंने पूरा वो ग्रिड नहीं बनाया। 1 स्टेप, -2 स्टेप and 3 steps. 1, -2, 3. That is what V1 is representing. So what V2 is representing? एक और एक 2 steps, 1 के बजाय -2, +4 steps, +6 steps, नहीं, -6। ये लास्ट वाला जो है ये गलत है, ये गलत बनाया है मैंने। -6 जाना है ना, इसका मतलब यहाँ से आई विल हैव टू गो डाउनवर्ड, तो -6 डाउनवर्ड। तो अगर मैं इसको बिल्कुल स्केल पे बनाऊं तो मुझे पता चलेगा कि ये जो V1 और V2 है ना, ये एक ही लाइन पे हैं, एंड दैट लाइन इज अ लाइन कि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते चला जाऊं तो इस लाइन के पॉइंट्स आते चले जाएंगे। अगर मैं A0 कर दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा, B0 कर दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए और बी के लिए जो भी वेक्टर बनेंगे, फॉर एग्जांपल कोई आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ ए एंड बी चूज करो। सर Don't, 1 1 यार इतने भी सीधे साधे नहीं करो। 3 - 4 सर सीधी सादी में सर जल्दी समझ आता है ना सर। अबे यार देख तो लेना। इससे एक ऑब्जर्वेशन आई कैन हैव दैट V1 और V2 में स्केल फैक्टर -2 का है जी, पैरेलल वेक्टर्स हैं, सही पकड़ा। हम अभी थोड़ी देर बाद आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद का मतलब है वेरी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कि वेक्टर इंडिपेंडेंट कब होते हैं और डिपेंडेंट कब होते हैं। ये वेक्टर डिपेंडेंट है। इससे पहले मैंने एक और एग्जांपल आपको जो 4 वेक्टर्स वाली करवाई थी, कहाँ गई वो 4 वाली?
और फिर कहा था कि ये चेक करो कि चौथा वेक्टर जो है पहले तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ऐसी एग्जांपल कराई थी ना। आई थिंक नीचे नीचे ओके, ये चार वेक्टर्स हैं। इसमें मैंने कहा था कि भाई चार वेक्टर स्पैन कर रहे हैं, और साथ में स्पेशल नोट बताया था कि इसमें से तीन वेक्टर्स जो हैं। हाँ ठीक है। तो असल में अगर मैं R3 में चार वेक्टर्स लूँ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तीन ही होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब ज्योमेट्रिकली हो जाएगा दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन नॉट द कॉमन डायरेक्शन। तो अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। दैट मीन्स अगर मैं वन, चलिए ये 3 4 को भी छोड़ दो, 1 -2 मैंने बनाया ही इसी तरह से था कि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट आई गेट -2 + 4 -6। so I can make dependent vectors easily. 1 2 -5, 3 1 -3, 2 1.5 -4। अब ये तीन वेक्टर्स हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि चेक कीजिएगा कि ये R3 को स्पैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। V1 V2 V3, क्या AV1 + BV2 + CV3 generate complete R3 or not? जी सर करेंगे। नहीं करेंगे? पैरेलल तो नहीं है। अरे तुम्हें अभी उंगली पकड़ के सिर्फ खड़ा होना सिखाया है, तुम भाग रही हो। ओके। What is 1 + 3? 4 4/2. 2 ओके। What is 2 + 1? 3/2 1.5 ओके। What is -5 -3? -8/2 -4। So third vector is made from first two vectors, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगला सबक जो हमने जो सबक पढ़ा है वो सबक पढ़ा है कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन और वो सबस्पेस कैसे बनता है, किन वेक्टर से क्या जनरेट होता है। एक वेक्टर अगर आपके पास है तो एक लाइन जनरेट होती है, दो वेक्टर हैं तो प्लेन जनरेट होता है, थ्री वेक्टर्स अगर एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसको हमने अभी सिस्टम इक्वेशन के थ्रू डिस्कस किया है। अब हम अगला जो हमारा एक्सप्लोरेशन है वो मोर अबाउट दीज थिंग्स। चैप्टर तो हो गया पूरा, सिर्फ एक्सरसाइज की डिस्कशन चल रही है, which is not introducing a new idea, but in the article of linear independence and dependence हम एक पिक्चर कंप्लीट करेंगे, और वो पिक्चर कंप्लीशन जो है कहाँ पे जाके हमें ले जाएगी कि इफ ये तीसरा वेक्टर डिपेंडेंट नहीं होता, V3 जो है मैंने यूं ना लिखा होता, 1/2 V1 + 1/2 V2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया ना मैंने। अगर ऐसा ना होता तो V1 V2 V3 इंडिपेंडेंट होते, इस वक्त डिपेंडेंट नहीं है। दे आर not sufficient to generate whole R3. तो कम से कम तीन linearly independent vectors होंगे, and we learn what is linear independence. With that, I terminate today's discussion. And अब हमारी अगली मुलाकात कहाँ होनी है और क्यों होनी है? ट्यूसडे को होनी है।